is a unicellular prokaryotic. Bacteria is a unicellular prokaryotic heterotrophic microorganisms, and if they are autotrophs, their mode of nutrition is of N-oxygenate type, where the source of electron donor is H2S, not H2O. Sorry. Hello. Yes, please. Madam, with us. Sorry. So, the size of the bacteria may vary from on an average 1 to 2 micrometer to even 1 to 1000 micrometer. For example, which we have discussed, what you call it, Thiomargarita nambiensis, which can be seen by the naked eye. Such smaller size of the bacteria leads to have advantage to the other organisms on the basis of their survival competence, because if the size of the cell or radius of the cell will be the less, the surface volume ratio will be high, and ultimately the mining of the nutrient in such cases will be the higher than the cell which is larger in size. Normally eukaryotic cells are larger in size than prokaryotic. These bacteria may be of different shape. Basically, it is grouped into three types. One we call it cocci, second we call it bacilli, and third we call it spiral. If it is spherical, we call it cocci. If it is a rod-shaped, we call it bacilla, and if it is spiral, then we call it also some other which we call it coma shape. We call it vibrio, then spirochetes, then others are there. Now, these bacteria, when we are talking shape of the bacteria, and when they are in the number of the two attached together, we call it diplo. If it is grouped together in four, we call it tetra. If it is in the chain, we call it a strepto. And if it is in a bunch, we call it a staplo. So this, what you call it, the prefix, maybe diplo, maybe tetra, maybe strepto, and maybe staphylo. When you see the structures of the bacteria, the outermost coverage or the outermost layer in the bacteria is normally glycocalyx. The glycocalyx consists of the polysaccharides and also some parts of the protein. These glycocalyx are of two types. One we call it capsule, other we call it the slime layer. When it is tightly adhered, we call it the capsule, and when it is loosely adhered, we call it the slime layer. To check the slime layer and what you call it capsule, we can perform it by a simple experiment itself, simply by shaking the bacteria in the water. If the water becomes what you call it oozy type, we can call it has not capsule, rather than it is a what you call it slime layer. The functions of the capsule or slime layer, one is it is related to the disease, as you must remember in case of R strain and S strain. Then, then it helps the bacteria in attachment with the substrate, like the disease associated with the mouth and disease associated with the urinary tract. These capsules retain the water contained to protect the bacteria against the desiccations. Below the capsule, we have cell wall, and these cell wall of the bacteria consist of the peptidoglycan. Means it has a peptides, proteins,
It has a glycan, it has a polysaccharide or carbohydrate. Let's say N-acetyl monomic acid and N-acetyl glycosamine. These NAM and NAG, they are cross-linked with the peptide linkages, and such cross-linking may be L-alanine, D-aminopamelic acid, diaminopamelic acid, glutamic acid, and like that. So these cross-bridging between NAM and NAG strain leads to the formation of the multi-layered of the peptidoglycan. Such multi-layered peptidoglycan exists in case of gram-positive bacteria, where peptidoglycan is almost 80 to 90%. And besides that, in gram-positive bacteria, they have picoic acids. The gram-negative bacteria is a much more complex in case of cell wall than the gram-positive bacteria. In gram-negative bacteria, out what you call it, there is in the inner membrane, there is a periplasmic space, then there is a peptidoglycan, and then outer space or outer membrane, which consists of the lipopolysaccharide. And lipopolysaccharide itself contains lipid molecules. The layer of the peptidoglycan in gram-negative bacteria is hardly 10 to 20%, and this is the one of the reasons is the thickness of the peptidoglycan, which leads to differentiation in the staining of the gram-positive and gram-negative. In case of gram-positive bacteria, it retains the color of the crystal violet because the peptidoglycan is quite thicker one. So even after the alcohol treatment, it doesn't pull out. In case of gram-negative bacteria, peptidoglycan is thinner one. So once you treat your cell with the alcohol, so all the crystal violet has been pulled out due to the hydrations created by the alcohol, and it leads to the counter stain by the saccharin. The cell wall, either gram-positive and gram-negative. The major role of the cell wall, let's give the shape of the bacteria. It protects the bacteria from the injury. Below the cell wall, we have the cell membrane or plasma membrane. The cell membrane and plasma membrane is semi-permeable in nature, and chemically it is made up of the lipoprotein. This means it has a lipid and it has a protein. So far the structures of plasma membrane is concerned, the proposed model of the Singer-Nicholson, that is the fluid mosaic model, is accepted model for the cell membrane structure. As per fluid mosaic model, the lipids act as a seed, whereas protein is floating inside. So protein may be peripheral protein, protein may be embedded protein, and protein may be even inside the cell. These lipids and proteins both are amphoteric in nature. Amphoteric means that they have both hydrophobic portions and the hydrophilic portions, and they orient themselves in such a manner that hydrophilic portions lie outside of the cell, whereas hydrophobic portions lie inside of the cell. That's why when they extract the water due to hydrophilic portion outside and hydrophobic portion inside, then they can repel it inside. And by this process, water enters inside the systems. So far, the function of plasma membrane is concerned. Wonderfully. Obvious. फर्दर मत करें. So for functions is concerned, one of the major function is the intake or what you call it, import of the nutrient and export of the waste material. And such import of nutrient and export of materials carried out by two processes. One we call it the active processes, other we call it the passive processes. If what you call it, if ATP is involved, it is against the concentration gradient, we call it the active processes. And if ATP is not involved, we call it the passive processes. And passive processes occurs through the diffusion gradient concept. Such uptake of the nutrient may be through either diffusion or through the osmosis. As we say, diffusion means flow of nutrient or flow of solvent from
what you call higher concentration towards the lower concentration. And similarly, in case of osmosis, you must be knowing is the solute lower concentration of solute. Never consider it. Sometimes we confuse it. Osmosis and diffusion. We say movement from the lower concentration to higher concentration. It's not like that. Lower concentration of solute, if you talk, then it's all right. If solute will be low, solvent will be high. Then there is another term, we call it facilitated diffusion. In case of facilitated diffusion, bacteria release cell membrane, release an enzyme which is known as permease. And such permease enzyme increase the permeability of the cell membrane. And such increase in the cell permeability leads to more uptake of the nutrients inside the system, more flow of the system inside the system. It is the protein molecule of the cell membrane which identify or which differentiate between the waste material and between the useful materials. This cell membrane is the site of biochemical activities. Cell membrane is the site of the genome replications. Cell membrane is responsible for the synthesis of the new component. Cell membrane is responsible for the repair of the cell. So all these functions, most of these functions are associated with the cell membrane. Now, with this cell membrane, on the outside, there is an emergence of one we call it flagella. And flagella, it is of proteinaceous in nature. It's made of the flagellin protein. In bacteria, we don't have 9+2 arrangement. And if you see the structure of the flagella, it has a three part. One we call it the basal body, second we call it the hook, and then we call it the filament. In diagram we have shown it's a LM ring, LP ring, it has a SM ring, or like that. That we will again, I will show you once we run through the slide. On the basis of the flagellar attachment, the bacteria may be monotrichous, single flagella, may be amphitrichous at both the ends, may be lopotrichous when in group, may be peritrichous entire the body systems. And these flagella help in the what you call it run the bacteria. These flagella help into the gliding of the bacteria. And you will surprised to know that if you compare the speed of the running between human being and the bacteria is much more faster runner than the human being. Besides flagella, the external appendages may be pili, may be fimbria. Both is made up of the protein component. We call it pillin protein, and pili, as I said, it helps in the transfer of the genetic material. Fimbria, it helps in the attachment with the substrate, and capsule and pili and fimbria helps in the formation of the biofilm. Inside the cell system, we have a cytoplasm, we have a nucleoid. In the nucleoid, we have 60% DNA, 30% RNA, 10% protein. DNA, if a chromosome, their number is 1. It's a very simple in nature. DNA is without a strand and everything. And we normally, it's a double-stranded circular DNA. Now there are reports in some of the cases in Vibrio cholerae, in Rhizobium leguminoscorum, it has not one rather than more than one chromosome. In case of Vibrio cholerae, we have two chromosomes. One is linear, one is what you call it circular. But in general, it's a double-stranded circular DNA molecule. Outside of the nucleosome, we have a plasmid. Plasmid is a double-stranded circular DNA, auto-replicative, extra chromosomal auto-replicative. It doesn't contain any essential gene, so it will remove it, it will cure the cell with the plasmid. Bacteria can survive, but their presence increase the survival competence of the bacteria. The number of the genes on the plasmid is normally up to the 30 genes. As for, say, for example, if it is a R plasmid, it contains the antibiotic gene. If it is a F plasmid, it contains fertility gene. If it is a col plasmid, it contains colchicine producing gene. If it is a TI plasmid, it contains tumor inducing gene, and so on. Besides plasmid, bacteria inside it has a ribosome. Ribosome is of 70S type, and it has a two component. One larger is 50S, one smaller is 30S. These 50S and 30S, it has both contains what you call it. It's a protein and ribosomal RNA of three types RNA, DNA, RNA gene. It is
16S ribosomal RNA gene, it's a 5S ribosomal RNA gene, it's a 23S ribosomal RNA gene. And this 16S ribosomal RNA gene is normally used in the identifications of the bacteria, and on this basis only Carl Lewis gave the concept of the domain. It normally consists of the almost 1500 kilobase pair, KBP. Besides this, the bacteria have also inclusions, like it is a phosphate, then we call metachromatic granules. If it is a glucose, we call it the glycogen. If it is a magnet, we call it magnetosome, and so on. So I think all these bacteria, let me run through the slides, then we will move to the growth. Please. Bacteria. दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कल इसी को डिस्कस कर रहे थे। देखो ये बता दिए थे तुमको। हमेशा याद रखना, एसएम रिंग को तुम कोरिलेट करना कि सेमी प्यूर्ड मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए एसएम रिंग कहाँ रहता है? सेल मेम्ब्रेन में रहता है। और एलपी रिंग कहाँ रहता है? जो बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल में होता है। लेकिन ये एलपी रिंग किसमें नहीं होता है? ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता। ये बता चुके, तुमको बता चुके। ये कंजुगेशन ब्रिज देख लो। ये देख लो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कैप्सूल तुमको बता चुके कि ये पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, फॉर्मली अटैच होता है, एडेसिव पावर होता है कैप्सूल में। और ये देखो, ये पैथोजन एसोसिएटेड होता है। यहीं पर एंटीजन का कंसेप्ट आता है कैप्सूल्स में।
एडेशन में मदद करता है, अवॉइडेंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स करता है, कैप्सूल बनने से उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। डिहाइड्रेशन का बता चुके, बायोफिल्म में मदद करता है, और स्टार्वेशन के समय जो है वो एज ए शुगर सोर्स यूज होता है। रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, पेप्टोग्लाइकन तुमको बता चुके, एनएएम और एनएजी का क्रॉस होता है जो पेप्टाइड से क्रॉस लिंक्ड होता है। आर्किया में सूडोम्यूरिन होता है, अदर शुगर होता है। आर्किया का कुछ हो सकता है तो उनको क्वेश्चन आ जाए इसी तरह का। इससे प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ये पेंसिलिन कैसे एक्ट करता है? पेंसिलिन क्या करता है? पेप्टोग्लाइकन के सिंथेसिस को रोक देता है, और पेप्टोग्लाइकन के सिंथेसिस को रोक देता है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि पेंसिलिन के चलते क्या होता है कि बैक्टीरिया जब पेप्टोग्लाइकन नहीं बना पाता है तो बस्ट कर जाता है, लाइसिस हो जाता है। ये देख लो, ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, कितना ये मोटा सा लेयर पेप्टोग्लाइकन का है, और इसमें ये टिचोइक एसिड्स है, ये सारा जो देख रहे हो टिचोइक एसिड्स है। ये एनएएम एनएजी का ये लेयर है, और ये पेप्टाइड से देखो क्रॉस लिंक है, और इसके नीचे ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव में देखो, इसमें अगर if you can see it's a 1 2 3 4 5, say for example it has a 5 layer of peptoglycan, but you will see the gram negativity is a single layer of the what you call peptoglycan. मैं हमेशा कहा आपको कि ये क्या होता है, 10 to 20%, it's almost 80%, so 80 to 90% peptoglycan होता है। और इसका सेल वॉल कम्प्लेक्स होता है, आप देख लीजिए, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, ये पोरीन्स है। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है ज़्यादा कम्प्लिकेट होता है, कम्प्लेक्स होता है ग्राम पॉजिटिव से। दिस इज एज आई सेड, देखो एनएएम एनएजी एनएएम एनएजी ये हो गया, ये एक स्ट्रेंथ हो गया, दीज स्ट्रेंथ आर लिंक्ड टुगेदर। कहीं और होगा तो मीटिंग राहुल में होगा। ये देख लो, एलेनिन डायमिनोपामिलिक एसिड होता है, और इस तरह ये अटैच होता है, ये ग्लाइकन से। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज थोड़ा सा लूप ऑफ द बैक्टीरिया यू प्लेस ऑन द स्लाइड, देन यू डेवलप द स्मेयर। हाउ यू डेवलप द स्मेयर? दूसरे स्लाइड को लेके उसके ऊपर आप रब करके उसका एक थीन लेयर स्मेयर बना, उसके बाद उसको जो है गर्म करके थोड़ा सा या हवा में ही उसको फिक्स करते हैं। जब वो ड्राई होने लगता है तब उसको उसमें क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। जब क्रिस्टल वायलेट आप डालिएगा तो जब भी आप उसको देखिएगा तो माइक्रोस्कोप में आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इसी तरह का कलर दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद, सेकेंडरी से वॉश करने के बाद फिर उसमें आयोडीन डालते हैं। आयोडीन होता है मॉडरेंट की तरह काम करता है, वो कलर को रिटेंशन में मदद करता है। अब यहाँ देखिए पूरा पेप्टोग्लाइकन में कलर है बिखरा हुआ, और यहाँ पर पेप्टोग्लाइकन पतला सा है। उसके बाद आप उसको फिर वॉश करके अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। अल्कोहल से ट्रीट करने पर क्या होता है, इसका कलर देखिए बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें जो ये कलर था क्रिस्टल वायलेट का, ये कलर देखिए बाहर निकल गया। ये जब कलर बाहर निकल गया तो बिल्कुल वाइट हो गया। और फिर जब काउंटर स्टेन आप सेफ्रोनिन से करते हैं तो देखिए ये रेड कलर का हो गया, तो किसका कलर रिटेन हुआ? तो ग्राम पॉजिटिव में क्रिस्टल वायलेट का कलर रिटेन होता है, ग्राम नेगेटिव में सेफ्रोनिन का कलर आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग हेड्स होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इनसाइड होता है। स्ट्रक्चर बाइलेयर होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन दैट वी हैव
integrated protein, peripheral protein, fluid mosaic model that we have already discussed. ये देख लीजिए, यही स्ट्रक्चर जो बताया कि ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन से ये फॉस्फेटिक मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, इस तरह ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। ये सारे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन एक छोर से दूसरे छोर की तरफ होते हैं। तो ऑल दीज व्हाट यू कॉल इट, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स होता है। फंक्शंस और कम्युनिकेशंस में मदद करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ स्प्लेला पिलाई को देता है, न्यूट्रिएंट में मदद करता है, वायलेंस फैक्टर होता है, वेस्ट रिमूवल करता है, रेस्पिरेशन, फ्लेजला अटैचमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एनर्जी स्टोरेज, मैक्सिमम फंक्शन इसी का होता है। Then cell cytoplasm, that you know, this is nucleoid, as I have said, is a plasmid, a small extra piece of chromosome, genetic material. It has 5 to 100 जीन, ये देखिए, ठीक है, ये F plasmid है, और ये क्या है, nucleoid. This is all the nucleoid, and this is the plasmid. Plasmid में 5 से 100 जीन हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सब जीन इसमें रहता है। प्लाज्मिड का स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बता चुके, फ्री और इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड एंड पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग, नॉट एसेंशियल बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया आपने, इंजीनियरिंग में यूज होता है, ये सब आपको पता। ये इंक्लूजन्स है, बॉडी है, ये अगर ये न्यूक्लियोइड पोर्शंस होता है बैक्टीरिया का, अगर देखिएगा तो सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है और एग्रीगेट होता है डेंस एरिया में, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए टाइटली क्वाइल्ड होता है, क्योंकि डीएनए का लेंथ जो है कई टाइम्स ज़्यादा होता है बैक्टीरियल सेल साइज से। क्लास This is all ribosome within cytoplasm, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। 2 सब यूनिट्स होता है, सेल में कई नंबर हो सकते हैं। But what do ribosomes do? Do you have any idea? What do ribosomes do? Protein synthesis. And what is the relationship between the job that the ribosome do and the genetic instructions of the cell? Sir, mRNA. Translation occurs with the help of ribosomes, where mRNA attaches and amino acid sequences are made. Means ribosome performs the protein synthesis, not deciding ribosome itself, rather than the message received from the genetic instruction, nucleic acid, in the form of messenger RNA. Is it so? Yes, sir. किस तरह का राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ये राइबोसोम डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड न्यूक्लिक एसिड करता है कि किस तरह का राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है। इंस्ट्रक्शन कौन पास करता है? न्यूक्लिक एसिड। किस फॉर्म में पास करता है? मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। 60% राइबोसोमल आरएनए है, 40% प्रोटीन, 2 सब यूनिट्स, ये सब जानते हैं आप लोग। यही 70s है, 60 एंड 30। इंक्लूजन ग्लाइकोजन स्टार्च का होता है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड ये होता है आपको। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड जो लिपिड्स करता है, इसका यूज होता है बायो, आजकल जो पॉलीथीन की बात हो रही है, बायोप्लास्टिक्स में इसका यूज होता है। दिस मॉलिक्यूल पॉलीफॉस्फेट मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल फॉस्फेट्स का होता है, सल्फर होता है,
गैस व्हीकल होता है, ये सब बता चुके। साइटोस्केलेटन याद रखिएगा कि अर्लियर वी आर नोइंग दैट बैक्टीरिया डजंट हैव साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोट डजंट हैव साइटोस्केलेटन, but now it has improved that in many bacteria they have an internal network of protein polymers which is known as cytoskeleton. And this is the difference comparison between prokaryote and eukaryote. If we see it before moving to the growth, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। प्री ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, उसमें ये सारा प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड कैप्सूल प्रेजेंट, सराउंडिंग सम एनिमल सेल्स में कभी कभी होता है। मोटिलिटी फ्लैजेला के थ्रू होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है कुछ में, सीलिया एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में सीलिया प्रेजेंट होता है। प्रिमरिया प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन होता है, इसमें सेल वॉल अगर होता है तो सेलुलोज का होता है, जबकि एनिमल में होता ही नहीं है सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक में कार्बोहाइड्रेट स्ट्रॉल लैक करता है, उसमें ग्लाइको लिपिड्स और इस तरह का होता है। साइटोसोल प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन दोनों में प्रेजेंट होता है। इंडोस्पोर इसमें कुछ में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम 70S होता है, 80S होता है। क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर, सब आप जानते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जनरल फंक्शन दोनों में प्रेजेंट रहता है। साइटोस्केलेटन जो है सेप इन प्रोकैरियोट सपोर्ट साइटोप्लाज्म यूकैरियोट, ये प्रेजेंट रहता है। किसमें पहले था कि एब्सेंट रहता है, अब कन्फर्म हो गया। सेंट्रोजोम का है, एब्सेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। ये ऑर्गेनेल्स रहता ही नहीं है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर एब्सेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके सब कुछ नहीं रहता है। गोल्गी बॉडी नहीं रहता, लाइसोसोम नहीं रहता, पेरोक्सोसोम नहीं रहता। वैक्यूल्स कुछ में रहता है, एब्सेंट नॉन नहीं रहता है। रेसिपिएंट्स रहता है, जिसमें बड़ी बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का दूसरा फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Then I will shift to the growth. Is there any questions from bacteria? Sir, can you please explain magnetosomes? ये तो क्लास बीच बीच में लोग छोड़ के जाते हैं, यहाँ मैसेज आते रहता है। ऐसा करते हैं, आज एग्जाम लेते हैं, ठीक है? ग्रोथ पढ़ाने दो, उसके बाद एग्जाम लेंगे। और एग्जाम में देख लेंगे, जो बच्चे होंगे उन्हीं को अपीयर होने देंगे। व्हाट इज ग्रोथ? It is sum of differentiation and development. सपोज करो डिफरेंट तरह का कूड़ा का लेयर जो है तुम जमा कर दो, कैन यू कॉल इट ग्रोथ? Yes, sir. Because yes, sir. Because growth is not the defining feature of living beings, so it occurs in non-living things also. Sir, in So if increase in growth is external, but in living things, growth is internal. Let Riya should explain, because she proposed a new thought. That's why I would like to discuss. You said that the growth Yes, sir. is not confined to the living organism. Yes, sir. Non-living organisms may have growth. Yes, sir. If we are collecting the
if we are collecting the mass of some dust particles, then if there is increase in the mass of or the height of that dust particle, then we can consider it as growth, because growth is not considered as the defining feature of living organisms. Sure. So because in those dust particles, the growth is external, And but it's taking place there. what about your hair? Sir, hair is also a external growth only. Nah. Growth in hair. How can Growth in you differentiate your growth with the what you call it with the hip of the dust particles? Sir, in living organism, the growth is both external and internal. But in that dust particles, that is only external growth. Anyway, can any other will try for the growth? Can anyone? Sachin. Where is Sachin? Roll number 66, Sachin. रोल नंबर सर सचिन, अरे तुम तो बिल्कुल क्या लिए हुए हो? झंडा फ्लैग है हाथ में? नो सर, देन फ्लैग होस्टिंग में गए थे तो वही मेरे सर्टिफिकेट। तो वही सचिन, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? सॉरी सर, रिपीट सर। एक शब्द होता है न्यूट्रिएंट और एक शब्द होता है न्यूट्रिशन। क्या चीज होता है? सर न्यूट्रिएंट जो रॉ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी नेचर में प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रिएंट है, लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म उसे अपना बॉडी फंक्शन उसको यूज करके करने लगे, या तो कैटाबॉलिक या तो एनाबॉलिक, और वो बॉडी का फंक्शन न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई आदमी न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हो? एनी ऑफ यू? So nutrition is the process of taking nutrient. Yeah, and what is nutrient? And so nutrient is basically the thing which gives energy to the any body or any plant organism. Nutrient means the substances which support the growth of the organisms. Am I right? Yes, sir. Yeah. सुशांत, तुम्हारा न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? सुशांत, Yes, sir. तुम्हारा न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? What is the mode of nutrition of Sushant? हेटरोट्रॉपिक सर। ज्योति, तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, सुशांत को बताने दो। Yes, sir. Heterotrophic है sir. Animal का. खोलो फिटिक है, खोलो जोइक है। Sir, holozoic. Sir. Hello. Sir, heterotrophic है sir. ज्योति, हेटरोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? सर जो हम लोग अपने आप से बॉडी में मतलब बनाते नहीं है, जो ऑटोट्रॉपिक होता है, जो किसी और से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में वो मतलब सिंथेसाइज नहीं होता है, हमारी ब्रेकडाउन होता है, मतलब हम एनर्जी गेन करते हैं। तुम आज नाश्ता कियो? यस सर। क्या कियो नाश्ता? सर ब्रेड ऑमलेट। घर में खाना? यस यस सर। घर में ब्रेड ऑमलेट मिलता है खाने के लिए, तुम तुम्हारे खा लेती हो? अलग अलग दिन यार बोलो बोलो कि नहीं खाएंगे, चलो ये सब बनाना नहीं करता है ब्रेड ऑमलेट। अलग अलग रहता है, कभी कॉल में रहता है, कभी पिज्जा मिल जाता है, मैगी मिल जाता है। अब ये बताओ कि ब्रेड और ऑमलेट जिस चीज से मिला, दोनों के न्यूट्रिशन में क्या अंतर है?
सर ब्रेड तो प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, मतलब प्लांट से मिला हुआ है। और सर कॉर्नफ्लावर मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, व्हीट से बनता है। और एग जो होता है मतलब वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो उससे प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ। खुद से सिंथेसाइज करते हैं, फूड सिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स और फोटोट्रॉफ्स। सर क्या? ऑटोट्रॉफ्स और फोटोट्रॉफ्स। सर दोनों ही हुए, क्योंकि फोटोट्रॉप मतलब लाइट की मदद से सिंथेसाइज करते हैं, तो सनलाइट तो मतलब मेजर होता ही है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो फोटोट्रॉप भी हो गया, ऑटोट्रॉप भी हो गया। या लिथोट्रॉफ। लिथोट्रॉप सर रोहित Yes, sir. कुमार दत्ता, रोहित, लिथोट्रॉफ्स क्या होता है? Sir, the organisms which derive their nutrition from chemical compounds. कौन से केमिकल कंपाउंड से लेता है? Sir, inorganic. इनऑर्गेनिक से। तुम हमको कार्बन का 2 ऑर्गेनिक और 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ। सर ऑर्गेनिक में आ जाएगा शुगर्स और पूजा 48। Yes, पूजा, sir. Yes, sir. पूजा बताओ 2 इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड का नाम, 2 ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड का नाम। सर ऑर्गेनिक में हो जाएगा ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, और सर इनऑर्गेनिक में सर अभी क्लास चलता है ना, सबका कान पकड़ के हम क्लास में करते हैं। जैसे क्लास 3 में किया जाता है। निवेदिता, Yes, sir. क्या इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड का नाम बताओ। Inorganic, sir. हाँ, Sir, carbon dioxide, carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्लाइड शेयर करते हैं, ग्रोथ पढ़ा के, लास्ट क्लास है, थोड़ा सा ये कर लेंगे। पढ़ रहा है? यस सर। Now the microorganisms normally derive their nutrition in 2 modes. If we classify it in a major groups, one we call it the autotrophs. Auto means self. Troph means to feed. Troph means to feed. Self-feeding. Those organisms which can synthesize their own food, we call it the autotroph. And those organisms which derive their nutrition from pre-synthesized food materials, we call it the heterotroph. वैसा ऑर्गेनिज्म जो पहले से बने हुए भोजन से अपना भोजन लेता हो, उसको कहते हैं हेटरोट्रॉफ। और वैसा केस जो कि अपना भोजन खुद बनाता हो, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ।
ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं नॉर्मली प्लांट्स, अलगी, बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। रेस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का एक खासियत ये होता है कि जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसमें पिगमेंट पाया जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मिलता है, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। तो हमने कहा एक होता है हेटेरोट्रॉफ, प्री सिंथेसाइज्ड क्या होता है, इनऑर्गेनिक, बिल्कुल जानते हैं। ये CO2 जो हमारा होता है, CO2 और H2 आपस में मिलकर व्हाट फोटोसिंथेसिस, we call it photosynthesis is a process in which carbohydrates are synthesized from CO2 and H2O in green leaves of the plants or in presence of the chlorophyll. Water enters inside the leaf through the root system, whereas CO2 enters through the stomata. CO2 और H2O मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है। और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, वो जो प्री सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, वही हेटेरोट्रॉफ्स यूज करता है। हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स को यूज करता है और ऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स को यूज करता है। इसलिए इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिथोट्रॉफ भी बोलते हैं। फोटोट्रॉफ्स लाइट, कीमोट्रॉफ्स ये हो गया। सेप्रोफाइट जानते हैं जो कि डेड से लेता हो, पैरासाइट जो लिविंग से लेता हो। अब आप इस बेसिस पर ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी सोर्स हम पूरे न्यूट्रिशंस को दो भाग में बांटते हैं, एक जिसमें लाइट एनर्जी सोर्स होता है, एक जिसमें केमिकल एनर्जी सोर्स होता है। अगर लाइट होता है तो उसका प्रीफिक्स फोटो होता है और केमिकल होता है उसका प्रीफिक्स हीमो होता है। और फिर कार्बन सोर्स के आधार पर हम एक लिथो कहते हैं और एक ऑर्गेनो कहते हैं। लिथो होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हुआ, और एक क्या हुआ हमने बताया, एक ऑर्गेनो होता है इसको हेटेरो कहते हैं। अब आप मिला दीजिए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म इसमें लाइट एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता हो, राइट। इसको फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ भी कभी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए यूज किया जाता हो कार्बन सोर्स। ये प्लांट्स, अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में होता है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, जैसे आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया पढ़ते हैं। वहाँ क्या होता है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में होता है। एक फोटो हेटेरोट्रॉफ्स होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही ये लेते हैं, लेकिन लाइट क्या करता है, लाइट उसके अपटेक को मतलब प्रोसेस के अपटेक को लाइट इन्हांस कर देता है, ज्यादा रूप में वो ले सकता है। और जितने बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब कीमो हेटेरोट्रॉफ्स होती है। कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ाया जा चुका है, कल्चर मीडिया बता दिया है, वो लोग नहीं बताया। जब आप 15 नवंबर को आप लोग आइएगा यहाँ तो फिर देख लेंगे। अगर मीडिया हम अभी नहीं पढ़ाएंगे फिर हम ग्रोथ आपको, हाँ ये किसका फोटो है, तस्वीर किसका है, बढ़िया है सर। हमारा फेवरेट कौन है? तापसी पन्नू। तापसी पन्नू। अच्छा, इसके ग्रोथ में और इस बैक्टीरिया के ग्रोथ में क्या अंतर है?
बैक्टीरिया ग्रोथ में सर नंबर मतलब सेल का नंबर इंक्रीज होता है सर। और एसोजारा बिना सेल नंबर इंक्रीज किए लंबी हो गई। नहीं सेल नंबर सर वो कॉम्बिनेशन, यहाँ जो पैचेस दिख रहा है सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है सर। और यहाँ जो एसोजारा में सर वो इंटरनल ग्रोथ है, लेकिन वो सेल टिश्यू फॉर्म किया, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म किया। इंटरनल ग्रोथ है कि अक्सर तुमसे लंबी है कि छोटी? तुम्हारा हाइट क्या है? आई डोंट नो सर। तुम्हारा अपना हाइट नहीं पता है? क्या नाम है तुम्हारा? अब मेरा हाइट पता है सर, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते सर। तुम्हारा हाइट कितना है? 5'11" सर। तो हाँ, तब तो तुम लंबे हो। Yes. और कोई बताओ अंतर, दोनों के ग्रोथ में अंतर बताओ। सर ये जो कॉलोनी दिख रही है उसमें रिप्रोडक्शन और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम ही माना जाएगा। अगर ये 1 से 2 बनते हैं सीधे 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, बट ये इन ह्यूमन अगर 1 से 2 सेल बना तो वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में वो सेल है, क्योंकि मल्टी सेलुलर है और वो यूनिसेलुलर है। चलो और कुछ? देखो सिंपल सा, growth, whether it's an Aspergillus, whether it's an bacteria. When you use the term growth, growth means increase in the number of the cells in the population. Always remember, increase in the number of the cells is called growth. In case of bacteria, since bacteria is unicellular in nature, increase in the number of the cell leads to the increase in the populations. Suppose there is one bacteria, from one bacterial cell, if it is a 4 bacterial cell, this means it's a 4 individuals. So increase in the number of the cells also leads to the increase in the populations in case of bacteria. In case of higher organisms, increase in the number of the cell doesn't lead to increase in the number of the organisms. एस्वर्जा राइज में जितना भी नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ा वो एस्वर्जा राइज ही रही, ये नहीं हुआ कि उसके बाद जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता गया और कई एस्वर्जा राइज बनती चली गई। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, increase in the number of the cells is also called growth, but such increase doesn't lead to the increase in the populations rather than the increase in the size. Now, bacterial growth occurs by a process, normally we call it the binary fissions. Other process, budding and other fragmentations are there. The most common processes of bacterial growth is the binary fission. Now, how growth it occurs? First, it will be absorption of the water and nutrient. The bacterial cell become active. They absorb water and nutrients from the surrounding. There is a catabolism of the carbon source. What is catabolism? Can anybody define it? Breakdown of macromolecules. Molecules. And what is catabolism? The formation of any biomolecule or any kind of macromolecules. Good. This is once nutrient will be entered inside the cell, then the catabolism of the such nutrient, then catabolism nutrient leads to biosynthesis of new cellular component, then cell size increase, cell divisions. सबसे पहले न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, सेल साइज बढ़ेगा, नहीं कार्बन सोर्सेस का जो है कैटाबॉलिज्म होगा। और इस प्रोसेस होने के पहले हमेशा एक बात याद रखना, सेल साइज और न्यूट्रिएंट माइनिंग और इस प्रोसेस से पहले सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन। पहला स्टेप क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसका जो जीनोम होता है वो जीनोम सबसे पहले रेप्लिकेट करना शुरू करता है। उसके बाद थोड़ी देर में बात करते हैं।
हम तो वो डायग्राम भी दिखाते हैं, देखते हो। देखो ये एक यंग बैक्टीरियल सेल, सबसे पहला काम जो होता है ये डीएनए का जीनोम का रेप्लिकेशन शुरू होता है। सेल इनलार्ज हुआ, पहला स्टेज यही होता है। देन सेल इनलार्ज होता है, जो बाकी चीजें होते हैं पेरेंटल सेल में उसके नंबर बढ़ते हैं, तो ग्रोथ हो रहा है तो नंबर ऑफ राइबोसोम्स विल इंक्रीज, लॉट ऑफ द प्रोटीन्स विल रिक्वायर्ड। फिर दोनों जीनोम माइग्रेट करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करता है और इस तरह एक से दो सेल हो जाता है। A young cell at an early phase of the cycle, a parent cell prepares for enlarging its cell wall, cell membrane, overall volume. Midway in the cell, the wall develops matrix and transfer septum. The septum will grow inward. Septum is synthesized at this point of the cell. अच्छा, एक बात बताओ कि बैक्टीरिया बूढ़ा होता है कि इज दैट एजिंग इन बैक्टीरिया? नो सर। श्योर? नो सर। नहीं होता है। इतने क्या नाम बताओ जो इतने श्योर से बोल रहे हो कि नहीं होता है। चलो होता है, मेरे पास टाइम नहीं, फिर आओगे तो इसको रिपीट कर देना होगा। नाउ बैक्टीरियल ग्रोथ अकर्स it's a geometrical manner, not an arithmetical manner. And when we say geometrical manner means 1, 2, 4, 8, 16 or like that. Bacterial growth क्या होता है? Geometrical, 2 to the power n. It's not 1, 2, 4, 6, 8, 10. It's not arithmetical ratio में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। 100% पे geometrical फॉर्म में होता है और 2 to the power 0 होता है। तो 3 टर्म याद रखो और ग्रोथ लिखाना सीखो। जनरेशन टाइम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू बिकम डबल। किसी भी सेल को डबल होने में जो टाइम लगता है उसको जनरेशन टाइम कहते हैं। ग्रोथ रेट कहते हैं ग्रोथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट द ग्रोथ रेट। ईच न्यूक्लियर साइकिल और जनरेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 as long as the environment is favorable, ये ग्रोथ चलते रहता है। इकोलाई का जनरेशन टाइम कितना होता है? 20 मिनट होता है। तो 20 जनरेशन, एक सेल जो है इकोलाई कितना 1 मिलियन सेल बन जाता है 7 घंटे के अंदर। इसको एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। ये देखो, एक था 2 द पावर 1, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ। इस तरह बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल होता है। ये भी एक्सपोनेंशियल है। Now how will you calculate the bacterial growth? तुम लोग कागज कलम लो, कागज कलम लिया? यस सर। सपोज करो कि फाइनल ग्रोथ है n। फाइनल ग्रोथ क्या है? n। ठीक है, ठीक है। Am I audible? यस सर। इनिशियल ग्रोथ लिखो n0। लिखिए। यस सर। फाइनल ग्रोथ बराबर कितना हो सकता है? n इज इक्वल टू n0 बिकम डबल बाय दिस मच ऑफ नंबर। यही होगा ना? n is equal to n0 become double by this much number of generation, n0 into 2 to the power n। यही होगा यस सर। क्या? n is equal to n0 2 to the power n। इसमें लॉग पुट करो तो क्या होगा?
लॉग लगा दोनों की तरफ। log n is equal to log n naught plus n log 2. Yeah, log n is equal to log n naught plus n log 2। n log 2 कितने के बराबर, क्या बराबर होगा? n log 2 is equal to 0.2 log 2. n log 0.3. वो तो n into 0.3 is the value of the log you are telling. I am asking, your equation is n is equal log n is equal to log n0, यही है ना, प्लस n log 2, ये लिखे हो ना? Yes sir. यस। इसको हम लिख सकते हैं कि log n माइनस log n0 is equal to n log 2। Yes, sir. नहीं, Yes, sir. Yes sir. n is equal to क्या होगा? Log n minus log n0 by log 2. log n minus log n0 by log 2। What is the value of log 2? 0.3 201। नहीं, इस तरह निकल जाएगा n एंड g इज इक्वल टू t बाय n। जनरेशन टाइम कितना कैसे निकालते हैं? g इज इक्वल टू t बाय n। इस पर एग्जाम में आएगा आपको हिसाब, मिड टर्म में, याद रखिएगा। मिड टर्म में इस पर या प्रोकैरियोट वाले, इससे दोनों में से किसी में से एक हिसाब रहेगा। The mean and doubling time is the amount of time required to the concentration. चलिए growth rate equal to 1, growth rate होता है 1 by mean generation time। बस आपको फिर हम ये बता देंगे, लैग फेज लॉग फेज, तो थोड़ा सा ये पढ़ा के अब खत्म करेंगे। ये बाद में पढ़ा, ग्रोथ कर्व सीख लीजिए। किसी भी बैक्टीरिया को अगर आप लिक्विड मीडियम में, ब्रॉथ में डालेंगे, शुरू में उसको कुछ टाइम लगेगा ग्रोथ को इनिशिएट होने में, उसको हम लोग लैग फेज कहते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्योमेट्रिकल रेशियो में होगा, और ये जो ग्रोथ ज्योमेट्रिकल रेशियो में होगा उसको हम लोग लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। उसका बैक्टीरिया जितना नया एडिशन होगा उतना ही बैक्टीरिया मरेगा, उसको हम लोग स्टेशनरी फेज कहते हैं। और बाद में मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, न्यू एडिशंस कम होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लाइन फेज या डेथ फेज कहते हैं। ये देखिए, ये आपका कल्चर मीडिया है जिसमें आपने बैक्टीरिया डाला, और बैक्टीरिया डालने के बाद एक्सपोनेंशियल फेज में देखिए पूरा सेल में बैक्टीरिया हो गया, ब्लू कलर। बाद में देखिए कि बैक्टीरिया मरने लगा और यहाँ पर जमा होने लगा, स्टेशनरी हो गया ग्रोथ इतना बढ़ा नहीं, और धीरे धीरे ये जो मरने का रेट है डेड सेल्स वो बढ़ता चला गया। ये लाइव सेल्स है और ये फ्यू सेल्स है। Suppose if you introduce or inoculate few cells of the bacteria in a broth culture, it needs some time to initiate the growth. Such requirement of the time, lag phase, depends on many factors. Say for example, if you are taking a culture from the death phase cycle, the lag phase will be the longer. अगर आपने क्या किया, इस ट्यूब से जो डेथ वाला साइकिल है, बहुत दिन पुराना कल्चर है, उससे आपने लिया और इसमें फ्यू सेल्स डाला, तो क्या होगा? बहुत सारा सेल्स मरा हुआ होगा,
उस सेल्स को रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तो लैग फेज क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ विल टेक द कल्चर फ्रॉम स्टेशनरी फेज, then lag phase will be shorter than the death phase. But if you take the culture from exponential phase, lag phase will be the shortest. क्योंकि all the cells were in the active stage. So lag phase means they prepare the bacteria to enter into the exponential phase, to enter into the geometrical ratio or geometrical growth rate. Another दूसरा एक फैक्टर ये हो सकता है, now suppose this culture contains glucose, say for example, and from the glucose containing media, bacterial media, you transfer it into the सुक्रोज कंटेनिंग मीडिया। क्या किया आपने जहां से कल्चर लिया वो ग्लूकोज में बेचारा अच्छा ग्रो कर रहा था और उसको आपने सुक्रोज में डाल दिया। आपने क्या हुआ, शुगर का सोर्स बदल दिया। अगर आप शुगर का सोर्स बदल देंगे तो लैग फेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप शुगर का कार्बन सोर्स बदल देंगे तो लैग फेज बढ़ जाएगा। किस फेज का कल्चर यूज करते हैं उस पर लैग फेज निर्भर करेगा। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, अदर कंडीशंस को चेंज करते हैं, लैग फेज विल इंक्रीज। नाउ वंस बैक्टीरिया विल एंटर इन द एक्सपोनेंशियल फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज तो फिर बिल्कुल ज्योमेट्रिकल रेशियो में ग्रो करता है। और अगर एक इकोलाई को 3 दिन तक ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाए बिना कोई रोक टोक के, तो इकोलाई का जो वजन होगा वो वजन पृथ्वी के वजन के बराबर होगा। यू कैन इमेजिन, ऐसा होता नहीं। वंस बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग इन ए बैच कल्चर इन ए क्लोज्ड कंटेनर, इट विल यूटिलाइज इट्स न्यूट्रिएंट। ये इसके न्यूट्रिएंट को यूज करेगा। जब इसके न्यूट्रिएंट को यूज करेगा, इसमें न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन शुरू होगा। ये बैक्टीरिया जब ग्रो करना शुरू करेगा तो ऑक्सीजन को यूज करेगा, ऑक्सीजन का डिप्लीशन करना शुरू होगा। ये बैक्टीरिया जब ग्रो करना शुरू होगा, स्पेस का कमी होगा, सब आपस में जो है कोगुलेट करने लगेंगे। जो बैक्टीरिया सेंटर की तरफ होगा उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा। ये सारा स्थिति होने लगेगा तो बैक्टीरिया मरना शुरू कर देगा। और बैक्टीरिया जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगा वो इसी के अंदर रहेगा, तो बैक्टीरिया मरना शुरू कर देगा। जब बैक्टीरिया का मरना शुरू हो जाएगा और एडिशन इक्वल होने लगेगा तो स्टेशनरी फेज में आ जाएगा। फर्दर डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट होगा, फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन होगा, फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स होगा, और इस तरह जो है बैक्टीरिया जो अल्टीमेटली वो डेथ फेज में चला जाएगा। ये 4 फेजेज ग्रोथ के होते हैं। ये भी डायग्राम आपको पता होना चाहिए। यही होता है लैग फेज। ऐसे न्यू ग्रोथ मीडियम, वाइल सेल्स प्रिपेयर टू डिवाइड। लॉग फेज हमने कहा, सेल मोस्ट एक्टिव फेज, स्टेशनरी फेज बताया, डिक्लाइन फेज बताया, लैग पीरियड बताया, न्यूली इनोकुलेटेड सेल्स एडजस्टमेंट में लगता है, द सेल्स आर नॉट मल्टीप्लाइंग एट देयर मैक्सिमम रेट। ये सारा चीज आपको होता है क्या, क्यों लैग फेज में टाइम लगता है। एक्सपोनेंशियल फेज में आपको हमने बता चुका, when the growth curve increases geometrically, cells reach the maximum rate of cell division, will continue as long as cells have adequate nutrients in the environment. ये आपका स्टेशनरी हमने बता दिया। आज के लिए एक कंटिन्यूअस कल्चर होता है, बैच कल्चर जब लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर होता है जबकि समय समय पर हम मीडियम को रिप्लेस करते जाते हैं। टॉक्सिक ग्रोथ होता है अगर ग्रोथ 2 कार्बन सोर्सेस में दिया जाता है। सपोज कीजिए आपने एक सोर्स ग्लूकोज लिया, एक सोर्स एक देख लीजिए, आपको हम डायरेक्ट ग्रोथ दिखाते हैं तो क्या समझ जाएगा। अब आपने ग्लूकोज दिया, सबसे पहले इसका पसंदीदा चीज क्या है, ग्लूकोज है। वो पहले ग्लूकोज यूज किया, ग्लूकोज यूज करके ये ग्रोथ बनाना शुरू किया। ग्लूकोज जो है कम होने लगा, ग्लूकोज जब कम होने लगा तब ये एडिनोज को यूज किया, और इस तरह जो है एक्सपोनेंशियल फेज 2 बार आया, स्टेशनरी फेज 2 बार आया। इसको डार्जिक ग्रोथ कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ। और 10 मिनट आपको सिर्फ हम पढ़ाया जा ही चुका है, आपको 10 मिनट के लिए रिमेम्बर करा दें इसका।
बैक्टीरिया का माइक्रोबायोलॉजी का क्यों पढ़ना चाहिए। बस 10 मिनट और लेंगे फिर आप लोगों को छोड़ देंगे। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। आप लोगों को स्लाइड चाहिए, किसी का मैसेज आया था। यस सर। कोई आदमी अपना मेल आईडी भेज दीजिएगा मेरे मेल पर, मैं अटैच कर दूंगा, बाकी आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे 10 मिनट में खत्म करना है, फिर होगा जब आप लोग आइएगा 15 नवंबर को, तो मैं कोशिश करूंगा चीजों को रिपीट करने का। सर 15 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं? मन है आने का? यस सर। सोच रहे हैं वही 15 से बुला लें, छठ खत्म हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि 10 दिन बाद बुलाते हैं, फिर दशहरा में, होली में, दिवाली में लोग भागेंगे। 15 के बाद बुला लेंगे और 15 के बाद एकदम गैप नहीं चलेगा, क्लास चलेंगे और सेमेस्टर को किसी तरह करके हमको रेगुलराइज करना, ठीक है? सर फिर दिसंबर के बाद तो 1 महीने की छुट्टी देनी ही है। नहीं देना सर, दिसंबर में तो एग्जाम भी होगी ना? एग्जाम होगा, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू कर देंगे। 1 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी? बहुत छुट्टी मना ली। ओके सर। मैं बेसिक बताते जाता हूँ, बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में रोल क्या है। इन वन लाइन, इफ एनीबॉडी विल आस्क मी to explain the role of bacteria in agriculture, in one line I can say, nobody can grow crop in a sterilized soil. दुनिया में कोई भी आदमी स्टेरलाइज सॉइल में क्रॉप को नहीं ग्रो कर सकता है, और स्टेरलाइज सॉइल में सब चीज रहता है, सारा फिजिकल केमिकल सब फीचर्स रहता है। क्या नहीं रहता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So the role of the microbes in agriculture is immense. Without microbes, agriculture is not at all possible. What are the major role? Let us come with the microorganisms which are responsible for the soil formation. I'm not going to tell you. Then you must have read about the formation of the soil. We call it the physical, chemical, and biological weathering. And it's the microorganism which first comes on this planet Earth. So the formation of the soil is the microbes are responsible. Whether you talk about the soil, physical and chemical properties, the microorganisms are responsible. You allow urea in the field, you allow chemical fertilizer in the field, and if microbes will go on its side, plants are not able to utilize the urea. So one day, strike by the microorganism will halt all the nutrition processes. It's the microorganisms which are responsible for the biogeochemical recycling, or which are the decomposers of the soil, which are the digestive juice of the soil. Microorganisms are the digestive juice of the soil. Because if microbes wouldn't have been there,
the entire earth would have been covered by the dead organisms. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेस्टिव जूस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही डाइजेस्टिव जूस जो है वो डिके करता है, और डिके मतलब क्या होता है, वो रिसाइकिल करता है, जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्सन होता है, फिर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक को बनाता है। तो माइक्रोब जो है वो चाबी होता है इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक के बीच। Is the microorganism which are responsible for the providing nutrients to the crop, either directly or indirectly. Directly we call it symbiotic, indirectly we call it asymbiotic. Say for example, legumes crops, we have a direct symbiotic relationship where we get the nutrient nitrogen for the crops. In case of mycorrhiza, we get phosphorus and water for the crops. It's a symbiotic relationship. Mycorrhiza is a symbiotic relationship. That rhizobium is a symbiotic relationship. Lichen is a symbiotic relationship. There are a lot of symbiotic relationships there. Cyanobacteria is an indirect supply of the nutrient to the rice crop. Azolla is the indirect supply of the nutrient to the crop. Azotobacter is the indirect supply of the nutrient to the rice crop. It's a phosphobacterine or PGPR, plant growth promoting bacteria. It's the indirect supply of indole lactic acid to the crop. Is the phosphate solubilizing bacteria, it's the indirect supply of nutrients to the crop. So it has also produced plant growth promoting substances, PGPR. It also produces sideropores. So in fact, in one line we can say, is crop feeding, in fact, it is dictated by the microorganisms. The biological control of the pests and disease. Again, microbes as a whole. You must have heard the name of the BT gene or BT cotton. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is used against the control of the pest. It's not only bacteria, nucleopolyhedrovirus, it is used to control of the pest and disease. Trichoderma is used for the control of the disease. So there are a lot of the microorganisms which are used as a microbial pesticides or biological control systems. It's the microorganism which helps to cope up with the stress by the plants, and it's the microorganisms which are responsible for degradations of the complex chemical compounds synthesized by the human being, what you call it, compounds. Again, microorganisms can also be used as a food, as a single cell proteins. You must have, many of you must have it, the mushroom. Mushroom is nothing, it's the microorganism. So microorganisms can be used as a feed. A time will come, certainly a time will come when people will have to shift to the microbial food also, because microbial growth is very fast. If a first organism which are used as a food or as a food supplement was the yeast, and since yeast is unicellular in nature, so normally microbial food is called SCP, single cell protein. Now 1 kilogram of the yeast inoculum, 100 kilogram of protein मिल सकता है, and that 1 kilogram of yeast inoculum, even in a small lab, that will be equivalent to the 1000 times that is equivalent to 1000 times what you call it in the soybean. Similarly, Synodesmus and chlorella, these are the two which are used by the fish, my favorite dish. Now 1 kilogram of the fish required about 1 lakh kilogram of the algae. 1 किलो मछली कितना चाहिए? 1 लाख किलो अलगी का रिक्वायरमेंट होता है 1 किलो अलगी के। अगर उसी पॉन्ड में अगर हम स्पार्गलिना बना लें, उससे हम 40 टन जो है 40 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं देन फिश। उसमें स्पार्गलिना जो एस्ट्रोनेट है वो भी यूज करते हैं, उसमें 65% प्रोटीन होता है, हाईएस्ट प्रोटीन एनी ऑफ द व्हाट यू कॉल इट ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट अर्थ। और स्पार्गलिना का टैबलेट 5 रुपया 10 रुपया में मार्केट में उपलब्ध है। मशरूम, ये मशरूम मशरूम का 10,000 स्पेसीज है और ये सब उसका कल्टिवेटेड स्पेसीज है। तो क्यों नहीं हम लोग राइजोबियम का आमलेट खाएं? Another role of the microorganism industry. Microorganisms can survive in any environment. सब आदमी जानते हैं कि microorganisms
इट्स लाइक ए ब्रह्मा विष्णु महेश गाइस। ये क्या कहते हो, प्रहलाद का जो ये था, वंश आस्क्ड हिरण्यकशिपु, वेयर इज योर गॉड? उसने कहा सब में मेरे भगवान, जहां तुम देखोगे वहीं है। इट्स द स्टोरी ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स अंटार्कटिका में मिलता है, माइक्रोब्स पाताल में मिलता है, माइक्रोब्स आकाश में मिलता है, माइक्रोब्स अंतरिक्ष में मिलता है, माइक्रोब्स क्या कहते हो तुम्हारा फॉरेस्ट में मिलता है, माइक्रोब्स डिजर्ट में मिलता है। इतने सारे सिचुएशन, माइक्रोब्स वॉल्केनो में मिलता है, माइक्रोब्स हमारे एसिड वाले बैटरी में मिलता है। अगर इतने डाइवर्सिफाइड में माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं, इसका मतलब उसमें उस तरह का बायोकेमिकल मशीनरी रहता है। तो मेटाबोलाइट्स जो होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, मेटाबोलाइट्स यूज होता है। ये जो मेटाबोलाइट्स जो होता है, दुनिया में सबसे अधिक डाइवर्स टाइप का अगर कोई मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो मेटाबोलाइट्स वो अपने लिए प्रोड्यूस करता है। हमको एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, एक माइक्रोवेल बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को उस प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है जिससे उसका कमर्शियल वैल्यू हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जब हम कहते हैं कॉन्शियस यूटिलाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डोंट से यूज ऑफ माइक्रोब्स इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। कॉन्शियस यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स in the industry for the human welfare. Microbes are its product. Now these microorganisms either use itself as a product or जैसे मशरूम में होता है, और माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोबिस्ट्राइड बनाता है, और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स इथेनॉल प्राइमरी, these are the primary enzymes, ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। और ये सारे एंटीबायोटिक, ट्रीटमेंट, बायोकेमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, बायोलॉजिकल वारफेयर, कोविड की कहानी लोग कहते हैं चाइना से जोड़ते हैं। देन देयर इज एनवायरमेंटल माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिना एनवायरमेंट के क्लीनिंग में भी माइक्रोब का रोल होता है। बहुत सारे जो स्प्लिसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल, जो कॉम्प्लेक्स इनोवाइटिस को माइक्रोब करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को भी फिक्सेशन 40% ऑफ द कार्बन का फिक्सेशन जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया हैंडल भी करता है। अब समझ लो रेस्ट पूरे लोग करते हैं। तो माइक्रोब्स का जो है डिग्रेडेशन से लेके और इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में माइक्रोब्स का रोल होता है। एंड फाइनली हम लोग कहते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, देयर इज ए न्यू साइंस व्हिच वी कॉल इट द माइक्रोबायोम। और माइक्रोबायोम कहता है ह्यूमन बीइंग में 9 सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, और 1 सेल हम लोगों का होता है। और हम लोगों का सारा प्रोसेस, बहुत सारा डिजीज और सारा चीज ये जो है आप में कैसा माइक्रोबियल का ये है उस पर निर्भर करता है। अगर आपके पर स्क्वायर सेंटीमीटर आपके चेहरे पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो आपको मॉइस्चराइजर का जरूरत नहीं होगा, आपके चेहरे पर जो है चमक बना रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लासेस। एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं किसी को कोई चीज पूछना है? Excuse me, sir. हाँ, Will there be any stationary phase in continuous culture? no. In a continuous culture, you will have to replace the. It depends. Suppose if you are replacing at what you call it at appropriate time, there won't be stationary phase. Suppose you have delayed for some period, there may be stationary phase. और सर दूसरा क्लास है सर अभी 11:40 से। क्लास है, जी सर। एग्जाम नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, क्लास कर लो। थैंक यू सर। मैं देखता हूँ, शेयर कर दूंगा।